Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham Junior College. We have started with our ninth chapter, that is the World War since 1945, phase 1. In that we saw the effects of the Second World War, that is the end of the primary of Europe, division of Europe, role of ideology, United Nations and the rise of Asia. We saw all these basic points, and before that we saw the introduction of all these two topics. Now we'll study the main organ of the United Nations. The main organ of the United Nations we are going to study this, that is General Assembly. The General Assembly is the main deliberative, policy making and representative organ of the UN. All the members of the UN can represent in the General Assembly. अब जनरल असेंबली ये क्या थी, इसके अंदर सब पॉलिसी वगैरह बना देते थे. अगर द रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, हु विल बी गोइंग देयर, देन वैसे और बहुत से कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन दैट यूएन. All the members of the UN are represented in General Assembly. Next is the Security Council. The Security Council has primary responsibility for the maintaining of international peace and security. अब Security Council बोलते हैं, by the name itself it is very clear that the Security Council has the primary responsibility for maintaining of international peace and security. It has 15 members, that is 5 permanent and 10 non-permanent members. अब सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? देयर वर 15 मेंबर्स, 10 आउट ऑफ विच 10 वर नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 मेंबर्स परमानेंट थे. जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज थे ना, उनके 5 मेंबर्स थे एंड दे यूज्ड टू स्टे परमानेंट इन दैट यूएन काउंसिल. एंड 10 मेंबर्स जो थे, दे यूज्ड टू कम बाय रोटेशन और बाय वोटिंग मेंबर दे यूज्ड टू कम. So this was all about the Security Council. The main role of the Security Council was to maintain the international peace and security. Third point, Economic and Social Council. The Economic and Social Council is the principal body for coordinating policy review, policy dialogue and recommendations on economic, social and environmental issues, as well as implementation of international agreed developmental goal. See, Economic and Social Council नाम से आई नहीं, बट इज़ वेरी क्लियर. उनका मेन क्या था कि हर जगह से कोऑर्डिनेट करना, नए नए पॉलिसीज़ बनना. अगर कोई कंट्री में इफ देयर इज सम वॉर गोइंग ऑन, सम वॉर लाइक ट्रीटीज आर गोइंग ऑन, देन मेंटेन दैट, सॉल्व दैट इशू, ये सारे उनके मेन काम थे. और इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाना और जो भी नए नए डेवलपमेंटल गोल्स बनाना. सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उनका क्या काम था? दे आर टू लाइक प्रॉपर पॉलिसीज़ बनाना, कोऑर्डिनेट करना, रिकमेंडेशन करना ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट नए नए बनाना एंड सर्टन डेवलपमेंटल गोल्स. नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. The Trusteeship Council was established to provide international supervision for 11 trust territories. See, Trusteeship Council का क्या काम था? It was to establish, to provide trusteeship supervision, like supervise करने का for 12 trust territories. Steps were taken to prepare the territories for self-government and independence. अभी steps लिए जाते थे कि like इतना एरिया मैं रूल करूँगी, राइट? ये तुम्हारी कंट्री की बाउंड्री है एंड यू आर सपोज टू रूल दैट. इसके लिए दे हैड टेकन सर्टन स्टेप्स एंड दैट प्रिपेयर, वैसे उन्होंने प्लान बनाए थे. बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेंडेड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस. सी, बाय 1994 सारे ट्रस्ट टेरिटरीज दे हैड अटेंडेड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस. द ट्रस्टीशिप काउंसिल suspended operation on 1st November 1994. See, the Trusteeship Council ने क्या किया? They started all the operations on 1st November 1994. मतलब they stopped their all the actions. मतलब almost it came to an end in 1st November 1994.
International Court of Justice. The International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN. अभी ये International Court of Justice क्या है? It is the main organ of the UN. Its seat is at the Peace Palace in the Hague, Netherlands. अभी इसका प्लेस कहाँ पे है? ये कहाँ पे फॉर्म हुआ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नीदरलैंड में, द हागे सिटी में. इसका मेन काम क्या था? अभी कुछ मैटर्स रहते हैं वो इंटरनेशनल के रहते हैं, राइट. जैसे कुछ अपने को केस फाइल करना है, किसी पे पिटिशन फाइल करना है, तो व्हाट वी डू, वी गो इन द कोर्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, राइट. बट इंटरनेशनल अपन लेवल पे किस पे जाएंगे? दिस इज़ फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए है. अगर किसी कंट्री के साथ अपने डिस्प्यूट चल रहे हैं एंड इट इज़ टेकिंग वेरी टोल और बहुत नेगेटिविटी जा रही है, that time you can file case in the international court and here you can get the justice and disputes can be solved here. Then secretary. The secretariat comprise the secretary general and UN staff member who carry out day to day work of the UN. अभी क्या रहता है? UN में क्या रहता है? एक सेक्रेटरी जनरल रहते हैं एंड UN स्टाफ मेंबर्स रहते हैं. उनका काम क्या है? दे आर सपोज टू कैरी आउट द डे टू डे वर्क प्रॉपरली ऑफ द UN. द सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब जो सेक्रेटरी जनरल है, ही इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ही इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ फॉर अ 5 years टर्म. सॉरी. अभी जो सेक्रेटरी जनरल है, ही इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. लाइक वो रोज़मर्रा के काम देखता है, उसके हाथ के नीचे स्टाफ रहता है. और उसको कौन अपॉइंट करता है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आपने यहाँ पे अपन ने देखा था अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़ आवर सेकेंड पॉइंट. उनके रिकमेंडेशन पे ही इज़ द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड. एंड कितने साल के लिए? ही इज़ अपॉइंटेड फॉर द 5 years term. Now moving towards the next point, the role of the United Nation. अभी अपन मेजर इम्पोर्टेंट रोल क्या प्ले करती है यूनाइटेड नेशन? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. द यूनाइटेड नेशन केम इनटू बिगनिंग इन 1945 with one central mission. See, यूनाइटेड नेशन कब आया? यूनाइटेड नेशन केम इन 1945 with one mission. एक ही मिशन के साथ आई थी, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. एक मिशन क्या था? एक ही मिशन था उनका. जब वी नो कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था, बट इट फेल्ड ड्यू टू मैनी रीजन्स. ये जो भी रीजन्स वगैरह है ना, विल स्टडी नेक्स्ट ईयर. लाइक नेक्स्ट ईयर आपको वर्ल्ड वॉर 1, 2, कोल्ड वॉर हिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ना है 12th में. तो लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन केम अप. और तब एक ही एम क्या था कि टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी. क्योंकि ये दोनों वॉर, द बोथ वॉर्स वे सो डिस्ट्रक्टिव. लाइक लोगों की पूरी इकोनॉमी चली गई थी, कंट्री का पूरा इकोनॉमी डाउन हो गया था. कितने लोग मर गए थे, लाइक आप काउंट नहीं कर सकते इतने लोग मरे थे उस वक्त. और हर कंट्रीज के थे. इवन इंडियन सोल्जर्स बहुत सारे मरे थे. क्योंकि क्या हुआ था? यूरोपियंस, वी वर रूल्ड बाय द यूरोपियंस. यूरोपियन क्या करते थे? सोल्जर सारे इंडिया से लेके जाते थे. और उस वक्त क्या था? इंडिया का कंडीशन बहुत पुअर था, लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था वॉर में जाने के अलावा. वॉर में जाते थे. और इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सक्यूज मी, इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को लाइक जो वॉर के लिए जो पैसा लगता है ना, इट वॉज अराउंड 100 करोड़ प्लस माइनस 100 करोड़ पैसा उस वक्त इंडिया से अपन ने इंग्लैंड को दिया था एज अ वॉर फंड बोल के. मालूम है, ब्रिटिश में सो खाने, मतलब वॉर इंडिया में, इंडिया डिडंट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द वॉर, बट इंडिया को ज़बरदस्ती वॉर में घसीटा गया था एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनी. विल स्टडी इन दिस 12th स्टैंडर्ड, ऑल दिस इन 12th स्टैंडर्ड. सो जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन UN was formed, it came up with the only
one mission, that is maintenance of international peace and security. The UN does this by working to prevent conflict, helping parties in conflict, making peace, peacekeeping and creating the condition to allow peace to hold and flourish. अब UN मैंने बोल दिया कि बाबा मेरे को हर जगह सब देश में आई वॉन्ट एवरीवेयर इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी. तो हो गया क्या काम? सब सुन लेंगे, सब हो जाएगा काम आपका अच्छे से? नहीं. यूएन को बहुत से काम करने पड़े इसके लिए. यूएन मेड श्योर कि किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो. अगर कोई कंट्री कॉन्फ्लिक्ट कर ली है तो वी शुड रिजॉल्व दैट विद पीसफुल ट्रीटीज़. शांति से दोनों कंट्री को साथ में बिठाएं. लाइक दो बहुत जो कंट्री के साथ झगड़ा चल रहा है वो दोनों कंट्री विल कम विद द यूएन में आएंगे एंड दे विल सॉल्व देयर इश्यूज. यूएन विल हेल्प देम टू सॉल्व ऑल देयर इश्यूज एंड दे विल मेंटेन द पीस. सर्टन ट्रीटीज साइन करनी पड़ी तो ट्रीटीज साइन करेंगे. एवरीथिंग वुड बी गोइंग ऑन पीसफुली. और अगर सब कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे सॉल्व हो गया तो क्या होगा? अपने आप देयर वुड बी पीस. देन सेकेंड पॉइंट इज protect human rights. The promotion and protection of human rights is a key purpose and guiding principle of the UN. Now what happens here? The protection and promotion of human rights. It was the key principle or the key purpose of the UN. UN का एक ही बड़ा काम क्या था? Is to protect and promotion of the human rights. See, every individual has some basic human rights and it need to be protected. So यूएन का एक बड़ा एम क्या था? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स. इन 1948 द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉज क्रिएटेड. फिर व्हाट हैपेंड इन 1948? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज क्रिएटेड. ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स अपन ने डिक्लेयर किए थे. यूएन डिक्लेयर्ड सम बेसिक ह्यूमन राइट्स इन 1945. What were those basic rights? Like right to educate, right to speak, right to move in any part of the country and all. Then next is the deliver humanitarian aid. One of the purpose of the United Nations is to achieve international cooperation in solving international problems of an economy, social culture or humanitarian character. एक और पर्पस क्या था यूएन का? कि बाबा हर जगह इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बन के रहना चाहिए. लाइक एवरीवन शुड कॉर्पोरेट विद ईच अदर. लाइक मुझे आपकी कंट्री से कोई मदद चाहिए तो आई शुड कॉर्पोरेट एंड आई शुड गिव दैट हेल्प, राइट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. फिर वो किसी भी फॉर्म में हो, बट नॉट फॉर द फाइट एंड ऑल. तो सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने का, एक दूसरे कंट्रीज के इंटरनेशनल प्रॉब्लम जानने का और वो ट्राई टू सॉल्व दैट. देन the international community relies on the UN to coordinate humanitarian relief operation in times of natural and man-made disaster. अच्छा, जब कोई भी कंट्री में डिज़ास्टर हो, लाइक कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आए या मैन-मेड कुछ भी डिज़ास्टर्स हो, तो क्या है, सब कंट्री ने हेल्प करने का, थोड़ा सा उस कंट्री के साथ कोऑपरेट करने का. जैसे केरला में बाढ़ आई थी तो वी नो कि चाइना ने अपने को कुछ हेल्प प्रोवाइड की थी, बट केरला के गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट कर दी थी चाइना की हेल्प. कुछ तब चाइना के साथ कुछ वॉर वगैरह चल रहा था अपना, चाइना के साथ अपना इतना रिलेशन अच्छा नहीं था, तो थोड़ा सा ख़राब चल रहा था. सो व्हाट हैपेंड, केरला की गवर्नमेंट ने वो रिजेक्ट कर दी थी. जो रिलीफ जो अपने को फंड आया था चाइना से वो रिजेक्ट कर दिया था. तो क्या है, ऐसे किसी भी कंट्री में नेचुरल कैलामिटी आए, कुछ भी आए ना, तो ऑल अदर कंट्री शुड कोऑपरेट एंड हेल्प द कंट्री. The international community relies on the UN to coordinate humanitarian relief operation in time of natural and man-made disasters. Promote sustainable development. The global understanding of the development has changed over the year. अभी global understanding of development क्या है, बहुत सा change हुआ है. The UN seeks to promote sustainable development, that is development that promotes prosperity and economic opportunity, greater social well-being and protection of the environment. अभी सब कुछ तो डेवलपमेंट जो भी हो वो अच्छे से होना चाहिए. लाइक डेवलपमेंट प्लान बनाए और आप वैसे डेवलप ही नहीं करो, विल इट बी फेयर इनफ? नो, देयर शुड बी प्रॉपर डेवलपमेंट. तो यूएन क्या करती है,
वी मेक श्योर कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट और वो डेवलपमेंट इस तरह से हो कि बाबा इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी और हर की ग्रेटर सोसाइटी वेलबींग एंड प्रमोशन ऑफ द एनवायरनमेंट। इवन एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है अपने को। अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, द डेवलपमेंट ऑफ एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन अ की पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सुनो यहाँ पे क्या है, यू शुड हैव अ प्रॉपर डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज। अब हर कंट्री के अपने अपने लॉज रहते हैं, राइट, सेट हर कॉन्स्टिट्यूशन में हर कंट्री के लॉज वगैरह लिखे हैं, सब कुछ है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट लॉज देर आर सम इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो, लाइक यूएन ने कुछ इंटरनेशनल लॉज भी बनाए हैं। तो वो इंटरनेशनल लॉज पे एवरीवन शुड वर्क। वो आप कुछ भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करो या इंटरनेशनल ट्रेड करो, उसके लिए अलग से इंटरनेशनल लॉज है। वो लॉज जो भी है आप फॉलो करो, यू आर सपोज टू फॉलो दैट। दिस वर्क इज कैरिड आउट इन मैनी वेज बाय कोर्ट, ट्रिब्यूनल, मल्टीलैटरल ट्रीटीज एंड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। अब एवरी कंट्री शुड फॉलो दिस लॉ। उसके लिए क्या है, कोर्ट है, एज वी हैव सीन दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन ट्रिब्यूनल्स है, मल्टीलैटरल ट्रीटीज है एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। दे मेक श्योर कि बाबा एवरीवन फॉलोज द लॉज। हर कोई लॉज वगैरह फॉलो करेगा अच्छे से, तभी सब कुछ एवरीथिंग वुड गो ऑन स्मूथली। आई जस्ट रीड आउट दैट, जो ग्रीन बॉक्स में लिखा है ना, डू यू नो, आई जस्ट रीड आउट दैट द नेम यूनाइटेड नेशन वॉज कॉइन्ड बाय यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। It was first used in the declaration by the United Nations of 1st January 1942 during the Second World War. In 1945, representatives of 50 countries met in San Francisco at the United Nations Conference on the International Organization to draw up the United Nations character. India was a founding member of the United Nations. It joined the UN in October 1945. Now we will move towards the Cold War. The division of Europe between East and West Europe led to tension between the United Nations and the Soviet Union. Abhi in last lecture we saw there was a division of Europe between as East Europe and West Europe. हाँ, अब यूरोप डिवाइड हो गया, एक के पास एक ने ईस्ट में कौन था, यूनाइटेड नेशन था, एंड वेस्ट में सोवियत यूनियन था। सो इट लेड टू अटेंशन, अभी कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और इट इज़ दिस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन यूरोप दैट गिव राइज टू द कोल्ड वॉर। ये दोनों के बीच में जो टेंशन चल रही थी, दिस गिव राइज टू द कोल्ड वॉर। द टर्म कोल्ड वॉर हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। अभी द टर्म कोल्ड वॉर हैज़ बीन यूज्ड। अब टर्म कोल्ड वॉर क्यों यूज़ किया है, इट वॉज यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड नेशन एंड द सोवियत यूनियन। दिस कॉन्फ्रेंशन हैड सेवरल डायमेंशंस। इन सब के बहुत से अलग अलग डायमेंशंस हैं। विल लुक द डायमेंशन फर्स्ट इज द पॉलिटिकल। वन वॉज द एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर द एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द टू कंट्रीज। एक एस्पेक्ट क्या था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लाइक एरिया, किसके पास ज़्यादा एरिया है, किसके पास कम एरिया है। ये एरिया को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चालू था बिटवीन दिस टू कंट्रीज। एरिया अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस इंक्लूड ईस्ट जर्मन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया एंड अल्बेनिया। अभी ईस्ट यूरोप के पास क्या था, ईस्ट के यूरोप के पास था जर्मनी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया एक्सेट्रा। और एरिया अंडर यूनाइटेड स्टेट इन्फ्लुएंस इंक्लूड नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, वेस्ट जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस एंड यूनाइटेड किंगडम। अब एरिया अंडर यूनाइटेड नेशन क्या था, दैट इज वेस्ट यूरोप। वेस्ट यूरोप में क्या था, बेल्जियम, वेस्ट जर्मन, फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, यूनाइटेड नेशन। फिनलैंड वॉज फोर्स्ड टू अडॉप्ट फॉर न्यूट्रलाइज टू एंश्योर दैट बोथ द यूनाइटेड नेशन एंड द सोवियत यूनियन डिड नॉट क्लैश इन द रीजन। अब फिनलैंड क्या था, ईस्ट और वेस्ट के बराबर बीच में था,
तो फिनलैंड को क्या बोला कि बाबा तू न्यूट्रली काम कर और मेक श्योर कि बाबा यूएन एंड यूनाइटेड स्टेट डू नॉट क्लैश इन द रीजन, दे मेक श्योर कि ये इधर बीच में ना आए. देन आइडियोलॉजिकली ईस्ट यूरोपियन adopted socialist ideology while the influence of Soviet Union and followed a socialist form of government. See, East European adopted socialist ideology under the influence of the Soviet Union. That is, सोवियत यूनियन ने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यूज़ की थी और उनका गवर्नमेंट भी सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था. वेर एज वेस्टर्न यूरोप क्या किया, वेस्टर्न यूरोप अडॉप्टेड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. वेस्टर्न यूरोप में क्या था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी था अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. दिस कंट्रीज हैड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अभी ये जो कंट्रीज है यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था. नेक्स्ट इज द इकोनॉमी. ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विद सोशलिस्ट गवर्नमेंट फॉलोड द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. अभी ईस्ट यूरोपियन में क्या था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट था, उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया. दिस मीन दैट द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर वुड प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम. सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला. इकोनॉमिक सिस्टम में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. कहाँ पे, ईस्ट यूरोपियन में. और वेस्ट यूरोप में क्या था, देयर वाज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था. वेस्ट यूरोप में क्या था, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था. उसके लिए क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था. लाइक प्राइवेटाइजेशन भी था, पब्लिक सेक्टर भी था, प्राइवेट सेक्टर भी था. बट ईस्ट यूरोप में क्या था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में सब कुछ था, लाइक गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ था. और वेस्ट यूरोप में क्या था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लाइक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों थे वहाँ पे. हियर द प्राइवेट सेक्टर प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम. सो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. Then the next point is the security. Military alliances were created in Europe to protect those countries. यहाँ पे क्या हो गया, military alliances were created in Europe to protect the countries. The North Atlantic Treaty Organization was created, that is NATO. North Atlantic Treaty Organization was created in 1949 as a military alliances to defend Western Europe countries and the United States from the threat of invasion from the Soviet Union and East Europe. See, North Atlantic Treaty Organization was formed. किसके लिए किया था ये, मिलिट्री अलायंसेस के लिए. सो दैट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्या हो गया, उनका जो थ्रेट था, जो डर था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज उन पे कॉन्कर करेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, उससे बचने के लिए ये जो नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज थे उन्होंने दे फॉर्म द ट्रिटी. United States from the threat of the invasion from the Soviet Union and the East Europe. Warsaw Pact was created in 1955. See, Warsaw Pact was created in 1955 to defeat East European countries and the Soviet Union from the threat from the West European and the United Nations. See, Warsaw Pact was created ताकि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को डिफीट कर सके. सी, दोनों कंट्रीज ने एक एक ट्रीटी फॉर्म कर ली ताकि वो दोनों एक दूसरे से बच सके. While there was no actual war between the United States and the Soviet Union, there exists a continuous state of tension between the two countries. See, यहाँ पे एक्चुअल दोनों कंट्रीज में वॉर कुछ भी नहीं था, बट देर वॉज अ वॉर लाइक सिचुएशन दैट कंटिन्यूड बिटवीन द टू कंट्रीज. वॉर जैसा टेंशन था, सिचुएशन था. द टर्म कोल्ड वॉर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन. और ये टर्म कोल्ड वॉर इसलिए यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी कैन डिस्क्राइब द सिचुएशन. अ स्टेट ऑफ टेंशन बट नो एक्चुअल वॉर. ये टर्म कोल्ड वॉर क्या है, ये सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा है. यहाँ पे वॉर जैसे सिचुएशन है बट एक्चुअल में देर इज़ नो वॉर. Thus, the two abbreviations were preparing for the possible war that did not take place. ये दोनों क्या कंट्रीज क्या चल रहे थे, ये वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे बट वॉर नहीं कर रहे थे. There was actually no war. Now, we should look at some of the major events and trends that have taken place since 1945. This is the brief survey of event and trends. अभी अपन
सब कुछ ट्रेंड्स देखेंगे जो उस वक्त हुए थे इन 1945. We'll look these trends in the next lecture. Thank you.